الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پردہ، الحمدللہ۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے پردہ، اور زیادہ تر یہ لفظ جو ہے الحمدللہ الحمدللہ سب نے جو ہے سنا ہی ہے، جتنی بھی بہنیں ہیں۔ لیکن پردے کے معنی اور یہ لفظ جب کسی بھی چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کو سب جانتے ہیں کہ پردہ کیا ہوتا ہے، یعنی کہ کسی چیز کو ڈھانپنا یا کسی چیز کی آڑ کر لینا، کسی چیز کو چھپانے کے لیے۔ لیکن ایک غلط فہمی جو ہے، جو ہمیں سب کو یہاں پر ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی معاملہ پردے کا ہوتا ہے تو لفظ پردے کے آتے ہی جنرلی عورتوں کی طرف جو ہے کیا کیا جاتا ہے، اشارہ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک، تو یہاں پر یہ چیز یہ ہے واضح ہو جائے کہ پردہ کس کے لیے ہے، اور جو ہے پردہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اسٹارٹ کریں گے۔ عورت اور مرد دونوں کے لیے پردہ ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ الحمدللہ۔ تو جب کبھی بھی پردے کا ذکر ہوتا ہے تو زیادہ تر عورتوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، لہٰذا قرآن نے کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ پردہ دونوں کے لیے ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ النور کی آیت نمبر 31 میں کہا، اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں۔ الحمدللہ۔ تو ہم اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب پردے کا ذکر ہوتا ہے تو پردہ دونوں ہی کے لیے آتا ہے۔ اب کیا ہے کہ اس امت میں پردے کے تعلق سے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہو گئی، کیونکہ ہم نے اصلی پردے کی اہمیت نہیں جانی ہے، کیونکہ اللہ سے بھی حکم دیا ہے تو یہ کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، یعنی کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ یہ نہیں کہا کہ مسلمان عورت یا پھر مسلمان مرد، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو۔ تو ایمان والیاں اور ایمان والے دونوں کے لیے کیا ہے، پردہ فرض ہے۔ تو صحابہ کا عمل یہ تھا کہ پہلے جب بھی وہ کوئی عمل کیا کرتے تھے تو ان کا طریقہ ہوتا تھا کہ پہلے وہ خود کو حکم دیتے تھے، خود میں اس عمل کو کرتے تھے، اور پھر جو ہے دوسرے انسان کو کیا کرتے تھے، اس چیز کا حکم دیتے تھے۔ الحمدللہ۔ تو اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم الٹا کرتے ہیں کہ خود کچھ نہ کر کے دوسرے کو جو ہے حکم دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج جتنی بھی جو ہے جتنی چیزیں ہیں، اس سے پہلے ہم اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی آج کل کے معاشرے میں جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں، جیسے کہ لوگوں کی جو ماڈرن سوچ ہو گئی ہے، جس کو ماڈرن مسلمز کہا جاتا ہے، بیسیکلی ماڈرن مسلم جیسی کوئی چیز ہے نہیں، اسلام ہمیشہ سے ہی ماڈرن ہے۔ اسلام نے کئی ایسی چیزوں کو ختم کیا جو کہ پرانے زمانے میں چلتی آئی تھی، ہے نا۔ تو انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے کہ لوگوں کی سوچ کیا ہے، اور اس کے علاوہ پردہ کیا ہے، پردے کی اہمیت کیا ہے، پھر پردہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ آج کے ٹاپک میں یہی سب چیزیں جو ہیں وہ کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پردے کے تعلق سے فرمایا سورہ الروم میں کہ جب بات کی تو بولا کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تو پہلے مردوں سے کہا اور پھر دوسرے کس کو، عورتوں کا حکم دیا۔ آج جو بے حیائی ہے یا تبرج جس کو بولتے ہیں، مطلب پردے کا الٹا، کہ کوئی خود کو دکھائے یا پھر جو ہے کیا کرے، ریویل کرے، تو بے پردگی اتنی عام ہو چکی ہے کہ جو لوگ عبایا کرتے ہیں یا پردہ کرتے ہیں تو انہیں کیا کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ پچھڑے ہوئے ہیں، اور یہ بہت زیادہ پرانے خیالات کے لوگ ہیں، یا پھر ان کو جو ہے کیا کہہ دیا جاتا ہے، آرتھوڈاکس ہیں۔ تو ابھی ہم کس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جب بھی پردے کا لفظ آتا ہے تو عورتوں کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اور جو ہے صحیح طریقے سے پردہ کرتے ہیں، یعنی کہ جیسا حکم ہے کرنے کا، ان لوگوں کو پچھڑا ہوا مانا جاتا ہے، یا پھر ان کے لیے پرانی مانی جاتی ہے۔ اور خود کو بولتے ہیں کہ ہم تو وہ لوگ ہیں جو بیٹیوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، یا انہیں تعلیم دلانا چاہتے ہیں، یا انہیں ترقی دلانا چاہتے ہیں، جس شریعت نے
جس حکم کو اتنی سختی سے بیان کیا ہو کہ اس امت نے خود کی اور ان لوگوں کو بیکورڈ اور orthodox بولنا کیا کر دیا، شروع کر دیا، اور بے پردگی کو اور بے حیائی کو کیا ترقی جو ہے ہم لوگوں نے سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ اب لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو لوگ آج کیا کرتے ہیں کہ پہلے لوگوں کا یہ ہے کہ پہلے لوگ اس وجہ سے جو لوگ بات بناتے ہیں ان کی بارے میں بات کر رہے ہیں کہ پہلے لوگ یہ بولتے تھے کہ آج تو ہماری نظر پاک ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ پردہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، الحمدللہ۔ اور آج کل جو معاشرے میں طرح طرح کی باتیں بنائی جاتی ہیں کہ جن کی نظر اچھی ہے لہٰذا ان کے سامنے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو بری نظر والے ہیں ان کے سامنے کیا کیا جائے، پردہ کیا جائے۔ اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پردے کے حکم کی وجہ سے انہیں پیچھے رکھ دیا گیا یا نیچا کر دیا گیا، چار دیواری میں بند کر دیا گیا، ٹھیک ہے، بلکہ شریعت اسلام نے پردے کا حکم دے کر کیا کیا ہے، عورت کو ہر جائز چیز کے لیے کیا دی ہے، آزادی دی ہے۔ اسلام سے پہلے اگر دیکھا جائے تو عربوں میں مختلف قسم کی کیا تھے، ظلم اور عورتوں پر ہوا کرتے تھے، لیکن اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کیا ہوا کہ عورتوں کو وہ عزت ملی، اور جو ہے کیا ملا، عورتوں کو وہ سب چیزیں ملی جس کا وہ حق رکھتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر بے پردگی آزادی ہے تو عرب اپنی لڑکیوں کو بھی دفنا دیا کرتے تھے۔ اگر پرانی سوچ اس چیز پر لے کر چلی جائے کہ پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، تو پرانے زمانے کا جو ہے یہ پردہ ہے، لیکن پرانے زمانے کی سوچ کیا تھی، دفنا دینا۔ پھر نئے زمانے کی سوچ کیا تھی کہ عورت اتنی زیادہ قیمتی ہے کہ اس کو جو ہے چھپا کر رکھا جائے، الحمدللہ۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ عورت جو ہے کیسی، عورت کو کیسے مانا جاتا تھا پرانے زمانے میں، کہ عورت جو ایک بری چیز، استعمال ہونے والی چیز، اور ایک دفنانے والی چیز، اور جو ہے کس چیز کے بیچنے والی چیز مانی جاتی تھی، تو یہ صرف پردہ ہی تھا جس نے اس کا کیا کیا، مقام بڑھا دیا۔ اب فار ایگزامپل اگر جو ہے لاجک لگائیں اس بات کو اور عقل بڑھائیں اس بات میں، تو لاجک بھی یہی بولتا ہے کہ اگر ایک قیمتی چیز آپ کے پاس ہو تو اس کا کیا کیا جانا چاہیے۔ تو اگر میرے پاس 10 روپے کا نوٹ ہے تو شاید میں اسے ہاتھ میں لے کر گھوموں گی، اور اگر میرے پاس 1000 کا نوٹ ہے تو شاید میں اسے جیب میں یا پھر اپنے والٹ میں رکھ کر گھوموں گی۔ لیکن اگر میرے پاس لاکھوں روپیہ ہے تو میں فوراً اسے لاکر میں کیا کر دوں گی، بند کر دوں گی، اور اس کی جو ہے حفاظت رکھوں گی تاکہ لوگوں کی جو ہے کیا نہ ہو، نظر نہ پڑے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پریشیس چیز ہے، پریشیس چیز یعنی کہ بہت زیادہ اہمیت والی چیز ہے، تو ہاتھ میں لے کر نہیں گھوم رہے ہیں نا، تو اس کی حفاظت کی جائے گی۔ تو جب پرانے زمانے میں عورتوں کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا تھا تو کیا ہوا کہ پردے کا حکم آیا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ عورت کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور عورت جو ہے بہت زیادہ کیسی ہے، پریشیس چیز ہے۔ تو شریعت نے عورتوں کو کیا کیا، پردہ دے کر جو ہے بہت ہی قیمتی بنا دیا۔ یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو کہ بولتے ہیں کہ پچھڑا ہوا ہے اور ایسی چیزیں ہیں، لیکن آج آزادی اور فریڈم کے نام پر جو بھی ہو رہا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے، الحمدللہ۔ اسی طریقے سے ہم سوچتے ہیں کہ اسلام میں جو ہے کیا ہے، چار چیزیں ہیں جو کہ کیا ہے، شہادت، توحید، اور نماز، کلمہ، روزہ اور حج، ہے نا۔ ان چیزوں کو کیا مان لیا جاتا ہے کہ یہی کافی ہیں ایک مسلمان ہونے کے لیے۔ لیکن ایک مسلمان ہونے کا مطلب جو ہے، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، مسلمان کا مطلب ہوتا ہے ایک فرما بردار۔ فرما بردار کون ہوا؟ جو کہ کسی حکم کو مانے۔ تو بے شک یہ پانچ چیزیں جو ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہیں، لیکن اس کے علاوہ قرآن میں دیا ہوا ہر ایک حکم کو ماننا ہمارے لیے فرض ہے۔ تو لہٰذا پردے کا حکم کو ماننا بھی ہمارے لیے فرض ہے، الحمدللہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حیا، اور یہ الحاکم کی حدیث ہے، الحیا من الایمان، حیا اور ایمان دو ہیں۔
जो एक साथ चलते हैं, एक को उठाया जाए तो दूसरा भी उठा लिया जाता है। यानी कि अगर हया नहीं है तो वो इंसान कैसा नहीं है, मोमिन नहीं है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अभी हमने देखा कि सूरह नूर में क्या कहा, ए मोमिन मर्दों और ए मोमिन औरतों, यानी कि ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें। तो जिसके पास हया नहीं है, हया क्या है? पर्दा। और जिसके पास हया नहीं है उसके पास ईमान नहीं है। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रब बाहया और करीम यानी कि करम वाला है। जब उसका बंदा उसके सामने अपने दोनों हाथ उठाता है तो उन्हें खाली लौटाते हुए उससे अपने बंदे से शर्म आती है। तो लिहाजा जिस रब की हम इबादत करते हैं वो भी हया वाला है, जिस इस्लाम में हम हैं तो वो भी हया वाला है। इसी तरीके से एक और हदीस में कहा, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने नक़ल फरमाया जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की 60 से कुछ ऊपर शाखें हैं और हया शर्म भी ईमान की एक शाख है। और हमने नेक्स्ट हदीस में क्या पढ़ा था, तो हमारा रब भी जो है वो हया वाला है, हमारा दीन भी जो है वो हया वाला है और हमारा जो ईमान है वो भी हया वाला है। और हया का जो मतलब है वो होता है पर्दा और जो है खुद को जो है क्या करना, ढाँप कर रखना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो हमें इन पाँचों फ़र्ज़ों के अलावा हमें हर वो चीज़ हम पर फ़र्ज़ है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें अहकामात दिए और हम पर जो है कुरान उतारा। क्योंकि एक फर्माबरदार क्या होता है कि जो रसूलों पर ईमान लेकर आए। एक फर्माबरदार कौन होता है? जो सिर्फ़ ख़ालिस अल्लाह पर ईमान लेकर आए। और एक फर्माबरदार इंसान वो होता है जो सिर्फ़ कुरान पर और जितनी भी किताबें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाज़िल की हैं उस पर ईमान लेकर आए, प्लस उसके अंदर जितने भी हुक्म हैं उन पर क्या करे, उन पर अमल करे। तो हर वो चीज़ जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया है कुरान में, हर वो चीज़ फ़र्ज़ है। इन 5 के अलावा ये हैं अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा, ज़कात, तौहीद, नमाज़ और हज। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा जितने भी हुक्म अल्लाह ने दिए वो क्या हैं, हम पर फ़र्ज़ हैं। तो इसी तरीके से सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 30 और 33 में हम पढ़ेंगे 30 से 33 में। आयत नंबर 30 है, ए नबी की बीवियों जो तुम में सरी हया के खिलाफ कोई जिरात करे, उस पर और उसे दूना अजाब होगा और ये अल्लाह को आसान है। फिर आयत नंबर 31 में फरमाया, और जो तुम में फर्माबरदार है, फर्माबरदार का मतलब क्या हुआ? जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हर हुक्म को माने, ना कि सिर्फ रोजा, नमाज, ज़कात और हज को मांगे, हर हुक्म को मानने वाला। और जो तुम में फर्माबरदार रहे अल्लाह और रसूल के और अच्छा काम करे, हम उसे औरों से दूना सवाब देंगे और हमने उसके लिए इज्जत की रोजी तैयार रखी है। अल्हम्दुलिल्लाह। ए नबी की बीवियों, तुम और औरतों की तरह नहीं हो। अगर अल्लाह से डरो तो बाद में ऐसी नरमी करो कि रो दिल दिल का रोगी कुछ लालच करे। हाँ, अच्छी बात कहो। अच्छी बात आई है लेकिन कभी भी किसी से ऐसी बात ना हो, इतना नर्म लहजा ना हो कि किसी इंसान के दिल में अगर कोई क्या हो, लालच हो या फिर किसी तरीके की बीमारी हो तो क्या ना हो। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हिजाब जो है या फिर किसकी बात कर रहे हैं हम, पर्दा है। तो पर्दा यहाँ आवाज का भी है बहनों। यानी कि पर्दा सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ एक कपड़ा डाल लिया सर के ऊपर और जो है सर से पाँव तक ढक लिया। पर्दा आपके अखलाक में, आपकी बात में, आपके चलने के अंदाज में, आप किसी को किस तरीके से ट्रीट करते हैं। या आजकल का ज़माना क्या है कि सिर्फ पर्दा डाल लिया और बाकी सारे काम हो रहे हैं। पर्दा डालकर लड़कियाँ नाचती हैं, लड़कियाँ डांस करती हैं, सारे काम नहीं। पर्दा सिर्फ एक जो है कपड़े तक महदूद नहीं है। तो क्या कहा जा रहा है, ए नबी की बीवियों और औरतों की तरह नहीं हो। अगर अल्लाह से डरो तो बाद में ऐसी नरमी करो कि दिल का रोगी कुछ लालच, बाद में ऐसी नरमी ना करो कि दिल का रोगी कुछ लालच करे। यानी कि अगर किसी से बात करें जिससे पर्दा आया है तो उससे नरमी से बात ना करें। और अपने घरों में, लेकिन आजकल इसका उल्टा ही होता है। अगर आप देखें तो जितना भी बाजार में अगर हम जैसी औरतें होती हैं या जितनी भी लड़कियां होती हैं तो क्या करते हैं, वहां जाकर जो दुकानदार होते हैं उनसे बहुत अच्छे से और अच्छे तरीके से बात की जाती है कि नहीं भाई,
प्लीज़ ये दे दीजिए, ये कर दीजिए। हालाँकि ऐसे बात करने को क्या किया गया, मना किया गया और कहा गया कि अगर किसी के दिल में जो है क्या होगा, लालच होगा या किसी के दिल में कैसा रोग होगा, तो वो जो है बढ़ जाएगा। तो आवाज़ का भी पर्दा कैसे हुआ कि हम क्या ना करें, हम बहुत नरमी से बात ना करें या फिर ऐसे अंदाज़ में बात ना करें कि सामने वाला जो है हमारी तरफ अट्रैक्ट हो पाए। फिर आयत नंबर 33 में क्या कहा, और अपने घरों में ठहरी रहो। तो इट इज़ बेटर किसके लिए? औरत के लिए कि वो अपने घर में रहे, बेहतर है रहो और बेपर्दा ना रहो। जैसे अगली जाहिलियत की बेपर्दगी और नमाज़ जैसे कि अगली जाहिलियत की बेपर्दगी थी। यानी कि जो इससे पहले जो जहालत के लोग थे, वो क्या थे? वो बेपर्दा रहा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले लोग क्या थे? जाहिल थे। तो जाहिल लोग बेपर्दा रहा करते थे। लेकिन आज जो है हमने ठीक हर एक आयत का उल्टा अगर देखा जाए तो हमने वो कर दिया है। कहा कि नरमी से बात ना करो तो हम वही करते हैं जाकर। फिर कहा कि जाहिलियत का तो बेपर्दगी किसका था? जाहिलियत के दौर में थी। लेकिन आज हमने उसी को क्या बना दिया है? फ्रीडम, फ्रीडम माय बॉडी एंड माय चॉइस, है ना? ये कर दिया है हमने हर चीज़ के लिए। अगली जाहिलियत की बेपर्दगी और नमाज़ कायम रखो और ज़कात दो और अल्लाह और उसी के रसूल का हुक्म मानो। अल्लाह तो यही चाहता है ए नबी के घरवालों के तुम तुमसे हर नापाकी दूर फरमा दे। यानी कि अगर आप घर में रहेंगी तो आप किस हर चीज़ से पाक रहेंगी, लोगों की गंदी नज़रों से पाक रहेंगी या फिर किसी को देखकर अलग-अलग तरीके के ख़्याल आएँगे उससे पाक रहेंगे। फर्माबरदार और तुम्हें पाक करके खूब सुथरा कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जितनी भी आयत हमने देखी और हमने ये देखा बहनों कि इसमें हर चीज़ उल्टी हो रही है। जिस चीज़ का अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हुक्म दिया उसका हम उल्टा ही कर रहे हैं। नरमी से बात करने के लिए कहा उसका उल्टा कर रहे हैं। फिर उसके बाद उसके अलावा जो है क्या कर रहे हैं कि हमसे कहा गया कि घर में ठहरी रहो तो हम सबसे ज़्यादा जो है बाहर जा रहे हैं कि घर में जो है कदम नहीं टिक रहा है हमारा कि नहीं मुझे बाहर जाना है, मुझे यहाँ रहना है। नो कोई ज़रूरी काम है तो बेशक जाएँ, ठीक है? लेकिन क्या कहा? लेकिन उसका हम उल्टा कर रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो ईमान का मतलब क्या है? फर्माबरदार इंसान वो है जो हर हुक्म माने, लेकिन इन आयतों का हम सरासर उल्टा कर रहे हैं, ठीक है? तो हम क्या करें कि लिहाज़ा पर्दा सिर्फ़ और सिर्फ़ कपड़े से ढकना नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पर्दे के लिहाज़ से जितने भी अहकामात दिए उनको मानना भी क्या है? पर्दा है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से पर्दा ईमान की अलामत है। सूरह नूर की आयत नंबर 60 में कहा गया और बूढ़ी खाना नशीन औरतें जिन्हें जिन्हें निकाह की आरज़ू नहीं, उन पर कुछ गुनाह नहीं कि अपनी बलाई कपड़े उतार रखें, जबकि सिंगार ना चमकाएँ और उससे बचना उनके लिए और बेहतर है और अल्लाह सुनता और जानता है। तो ये किन लोगों के लिए आया? ये उन लोगों के लिए आया है कि जैसे कोई औरतें हैं क्योंकि पर्दा क्या करता है? इज़्ज़त दिलाता है। क्या नबी किनसे कह दो अपनी बीवियों से और जो है मुसलमान औरतों से कि क्या करें कि खुद को ढाँक लें। अपने चेहरे को छुपा लें और खुद को ढाक लें, जब निकले तो घर से चादर ओढ़ कर निकला करें, जब पर्दे का हुक्म आया, तो यहाँ का क्या कहा गया बूढ़ी औरत, तो ताकि लोग इज़्ज़त दे सकें और जान सकें कि ये औरत कौन है, ये मुसलमान है। लेकिन यहाँ बूढ़ी और खानानशीन औरत के लिए आया कि अगर वो चाहें और इस उम्र को पहुँच जाएँ कि वो नहीं करना चाहती या नहीं कर सकती, तो वो किस लिए? क्योंकि बूढ़े इंसान की इंसान अपने आप ही इज़्ज़त करता है ना? बूढ़े इंसान की अपने आप ही इज़्ज़त हो जाती है। हाँ, अगर वो बूढ़ी है तो क्या ना करे जबकि अपना श्रृंगार ना चमकाए। तो ये है इसकी कंडीशन कि बिल्कुल वो सच संवर के ना निकले। उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या दिया रियायत दी है कि हाँ भई अगर 70-80 साल की क्या करे 70-80 साल की जो है क्या हो जाए औरत जो है वो हो जाए तो वो ना करे तो बेहतर है। लेकिन हाँ, अगर श्रृंगार ना चमकाए लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या करे अगर अपने आप को बचाती है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतर क्या है और अल्लाह सुनता और जानता है। लेकिन आजकल अब देखिए इसी आयत का उल्टा हो रहा है वो क्या चीज़ है कि जभी भी अगर हम कहीं जाएँगे तो अम्मा जितनी भी होती हैं आजकल के दौर में सब अम्मा ने क्या किया होता है बुर्का पहना होता है और 18 से 19 साल की लड़कियाँ जो हैं बेपर्दा घूम रही होती हैं। मतलब जिनके लिए कहा जा रहा है कि आप नहीं करें
हुँ, कि इस उम्र तक पहुँच गई हैं कि अब शादी नहीं हो सकती या फिर जो है नहीं सँभाला जा रहा है कोई चीज़ और अपनी जो है उसको ना तो उस उल्टा हमने 3 आयतें इससे पहले पढ़ी सूरह अहज़ाब की, उसका हमने उल्टा किया। उसके बाद जो है हमने क्या किया कि हमने सूरह नूर की आयत नंबर 60 पढ़ी, उसका उल्टा किया कि जो बूढ़ी अम्मा होती हैं, वो पूरा ढक कर चलती हैं और उनके साथ उनकी पोतियाँ और उनकी नातियाँ जो होती हैं, वो 18 साल, 19 साल की होती हैं, खूब बाल खुले। किसी शादी का ही अगर हम सीन देख लें, तो हर चीज़ उल्टा कर रहे हैं। फिर हम कहते हैं कि हम ईमान वाले हैं। ईमान वाला कौन हुआ? जो कि फर्माबरदार है और फर्माबरदार सिर्फ़ ऐसा नहीं कि चंद चीज़ों का फर्माबरदार, नहीं कुरान में जितनी चीज़ें आई हैं, हर चीज़ का फर्माबरदार। तो लिहाज़ा हमें चाहिए कि हम अपने ईमान को किस तरीके से बढ़ाएँ कि जैसा पर्दे का हुक्म दिया गया है, वैसा ही करें। अल्हम्दुलिल्लाह। अब पर्दा तहारत का ज़रिया है। तहारत किसे बोलते हैं? धोना, किसी चीज़ को जो है नापाकी को मिटाना, खुद को पाक करना, है ना? तहारत उस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो सूरह अल-अहज़ाब की आयत नंबर 53 में आया। तो पर्दा क्या है? पाक करने का तरीका है। तो ये किन लोगों के लिए है कि भई पर्दा जो है क्या है? इस तरह जो है हम सोचते हैं कि इस्लाम में जो है न क्या है कि पर्दे से कुछ नहीं होता। तो पर्दा क्या कहा गया कि तहारत का ज़रिया है, साफ करना, धोना या फिर पाक करना। तो पर्दों को क्या कहा अल्लाह ने दिलों की तहारत कहा है, ठीक है? दिलों की पाकीज़गी कहा है। इसमें उन लोगों के लिए जवाब है जो कहते हैं कि हमारा दिल का पर्दा है। और क्या है? हम जो हैं क्या है दिल का पर्दा करते हैं। तो सूरह अल-अहज़ाब की आयत नंबर 53 में कहा ए ईमान वालों नबी के घरों में ना हाजिर हो जब तक अज़्न ना पाओ मतलब जब तक आपको इजाजत ना हो ठीक मसला खाने के लिए बुलाए जाओ ना यूं कि खुद उसके पकने की राह तको हाँ जब बुलाए जाओ तो हाजिर हो और जब खा चुको तो मुतफरक हो जाओ ना ये कि बैठे बातों में दिल बहलाओ बेशक उसमें नबी को ईज़ा होती थी, तो वो तुम्हारा लिहाज़ फरमाते थे, वो अल्लाह हक़ फरमाने में नहीं शर्माता और जब तुम उनसे बरतने की कोई चीज़ माँगो, तो पर्दे के बाहर से माँगो। इसमें ज़्यादा सुथराई है तुम्हारे दिलों और उनके दिलों की। किसके दिलों की? कि तुम्हारे दिलों और उनके दिलों की क्या है? सुथराई है, यानी कि साफ़ है और पाकीज़गी है। किस चीज़ में पाकीज़गी है? कि जभी भी उनसे कोई चीज़ माँगो, तो किस चीज़ से माँगो? पर्दे के बाहर से माँगो और तुम्हें नहीं पहुँचता कि रसूलुल्लाह को ईज़ा दो और ना ये कि उनके बाद कभी उनकी बीवियों से निकाह करो बेशक ये अल्लाह के नज़दीक बड़ी सख्त बात है। अब ये देखिए कि उन लोगों के लिए जवाब है जो कि कहते हैं कि हमारे दिल तो पाक है और हमारा क्या है दिल का पर्दा है कि पर्दा नज़र का होता है और पर्दा किस चीज़ का का होता है। तो अल्लाह ने सहाबियों से कहा कि जब तुम्हें अपनी माँ से ठीक है यानी कि जिनसे शादी करना जो है क्या है कयामत तक नहीं हो सकती जिनसे शादी है ना नबी की बीवियों के लिए यहाँ पर ये बात आई तो उनसे हिजाब की आड़ में बात करो क्या करो तो उनसे हिजाब की आड़ में बात करो कि ये तुम्हारे दिलों की पाकीज़गी के लिए है यानी कि तुम्हारे दिलों की तहारत के लिए है। तो अब जो लोग ये बोलते हैं कि हमारा तो दिल का पर्दा है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो क्या कहा? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि आड़ में बात करो वो तुम्हारे दिल की पाकीज़गी है। तो क्या हम उल्टा नहीं कर रहे हैं? तो बहनों आप देखिए कि जितनी भी आयतें आज यहाँ पर पढ़ी जाएँगी उसका हम क्या करते हैं उल्टा कर रहे हैं। और उल्टा करने का मतलब क्या मतलब हुआ कि हम सरासर क्या कर रहे हैं कुरान की आयतों को झुटला कर उससे इनकार कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि हम सिर्फ मुसलमान घर में हैं और जो है जितने भी अहकामात हैं उनको क्या कर रहे हैं ठुकरा रहे हैं अब यहाँ पर देखिए कौन किससे पर्दा कर रहा है उम्मत की बेहतरीन औरतें और उम्मत के बेहतरीन मर्द जो हैं क्या कर रहे हैं उनसे पर्दा कर रहे हैं हुक्म किसको दिया जा रहा है अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सअद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को किससे सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ठीक है और उसके अलावा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्हम्दुलिल्लाह तो क्या है कि किस उम्मत की बेहतरीन औरतों को
बेहतरीन और आदमी मर्दों से क्या कहा जा रहा है, पर्दा करने के लिए कहा जा रहा है। और क्या कहा जा रहा है कि आड़ में बात करो उसमें तुम्हारे दिल की पाकीज़गी है। ना कि जो लोग बोलते हैं कि हमारा दिल पाक है और हम तो बात करेंगे, है ना? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा कि तुम्हारे दिल की पाकीज़गी किसके अंदर है? तुम्हारे दिल की पाकीज़गी है कि तुम आड़ में बात करो, यानी कि पर्दे में बात करो। फिर पूरा बताया कि अगर खाना खाने भी जाओ तो वहाँ ज़्यादा देर ना बैठो, ज़्यादा देर ना बैठो। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, वॉइस क्लियर है अब। पर्दा ईमान की दलील है। सूरह अन-निसा की आयत नंबर 69 में कहा गया, और जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म माने तो उसे उनका साथ मिलेगा जिन पर अल्लाह ने फजल किया, यानी अंबिया और सिद्दीक और शहीद और नेक लोग, ये क्या ही अच्छे साथी हैं। तो अब जो लोग कहते हैं कि हमारा दिल साफ है और जो है हम ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो बहुत ज्यादा क्या नहीं है, ऑर्थोडॉक्स नहीं है, पुराने जमाने के नहीं है, या ऐसे नहीं है। तो ये एक आदमी था, वो बहुत ज्यादा परेशान था, और फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और उसने पूछा कि या रसूल अल्लाह, कयामत में आपका हिसाब तो अंबियाओं में होगा और जो है हम पीछे रह जाएंगे, और अभी तो मतलब करार नहीं आता है आपको देखे बिना, तो वहां कैसे होगा? ठीक, उन्होंने ये चीज़ पूछी। तो फिर जो है वो इंसान वहाँ से चला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कहाँ गया वो आदमी? उसके बाद सूरह निसा की ये आयत जो है क्या हुई, नाज़िल हुई। तो क्या इस आयत में क्या था, और जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म माने तो उसे उनका साथ मिलेगा जिन पर अल्लाह ने फजल किया, यानी अंबिया। किसका साथ मिलेगा? अंबियाओं का साथ, सिद्दीक का, जो सच्चे हैं, और जो शहीद है, और जो नेक लोग हैं, ये क्या ही अच्छे साथी हैं। तो जिस क्या है, अल्लाह और रसूल का साथ जिसने दिया उनको इनका साथ मिलेगा। तो कौन किसके साथ रहेगा? जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसके साथ रहेगा। यानी कि अगर आज हमने अपना रोल मॉडल किसी एक ऐसे इंसान को बना लिया जो कि बेपर्दा है, जो कि क्या है, जो कि बेपर्दगी करता है, तो हमें उसी का साथ मिलेगा। तो अब जब उस इंसान का हमें साथ मिलेगा तो उसका ठिकाना अगर जहन्नुम हुआ तो हमारा ठिकाना भी, अल्लाह हम सबको माफ करे, क्या होगा? जहन्नुम ही होगा बहनों। ठीक, तो हमें चाहिए कि हम क्या करें, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताई हुई चीजों पर क्या करें, अमल करें। अल्हम्दुलिल्लाह। पर्दा शर्म और हया की दलील है। शर्म और हया की दलील है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर दीन का कोई ना कोई पहला अखलाकी पहलू होता है, और इस्लाम का अखलाकी पहलू हया है। और इसी तरीके से हमने क्या पढ़ी, अल हाकिम की एक हदीस पढ़ी थी जो हमने सेकंड स्लाइड में पढ़ी थी, अल हया मिनल ईमान, के यानी कि ईमान और हया जो है साथ में है, अगर एक भी गया तो ईमान चला जाता है। तो इसी तरीके से ये मुस्नद अहमद की रिवायत है कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैं उस घर में दाखिल होती जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे वालिद यानी अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा क्या मदफून है, यानी कि जो दफनाए हुए थे, तो मैं ये सोचकर अपनी चादर उतार देती थी कि ये सिर्फ मेरे वालिद और शौहर हैं, जिसकी जियारत जिसकी जियारत कर, लेकिन अल्लाह की कसम, जब उमर रज़ियल्लाहु अन्हा, जब उनका इंतकाल हो गया, उमर रज़ियल्लाहु अन्हा का, उनकी साथ दफन हुए हुए, तो मैं मुकम्मल तौर पर पर्दा किए बगैर अंदर नहीं जाती थी। ये उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शर्मिंदगी की वजह से, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे उनसे हया आती है। क्यों? उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनके लिए क्या थे? गैर महरम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके शौहर हुए। फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनके वालिद हुए। तो जब तक उनकी कब्रें वहां थी तो आप वहीं रहती थी। लेकिन जैसे ही उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हुआ और वो फौत फरमाया, जब उनको वहां दफनाया गया, तो आप अपनी चादर को सर पर ढक लिया करती थी और कहती थी कि मुझे उम्र से क्या आती है, शर्म आती है। यानी कि ईमान देखिए जिसका क्या है, तेज है, वो जरूर क्या करेगा, शर्म करेगा, हया करेगा। और हया का मतलब क्या मैंने बताया कि हया का मतलब सिर्फ एक कपड़ा नहीं, आपका बोल, आपका चाल, आपका जो है रहना, आपका किसी से बात करना, और आपका लहजा, हर चीज में क्या है, पर्दा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये देख लिया कि पर्दे की इतनी अहमियत है। और पर्दा क्या है कि ऑपोजिट वर्ड क्या बताया था हमने पर्दे
का कि तबर्रुज है। पर्दे का ऑपोजिट वर्ड है तबर्रुज। तो उसके नुकसानात क्या हैं और जो है क्या-क्या जो है चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही हैं। एक और है, पर्दा ज़िना को छुपाने की चीज़ है। ये अबू दाऊद की रिवायत है। ये इस हया की हिफ़ाज़त के माहौल का नतीजा था कि जब सैयदना ख़लाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिनके फ़र्ज़ंद एक जंग में शहीद हुए थे, यानी कि इनका बेटा क्या था किसी उसमें शहीद हो गए थे जंग में। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में मुबारक में तशरीफ़ ले आईं। बेटे के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए किसी ने हैरत से कहा, तुम इस वक्त भी पर्दा कर रही हो? उसने जवाब दिया, मैंने अपना बेटा ज़रूर खो दिया है लेकिन हया नहीं खोई। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोग क्या करते हैं, जब मान लीजिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किसी से छीन लिया या फिर जो है क्या हो जाता है किसी के घर में बहुत मतलब मौत हो जाती है, तो बेशक इंसान बहुत ज़्यादा ट्रॉमा से गुज़रता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। लेकिन ये वो औरत थी जिनका बेटा जिन्होंने जंग में खो दिया और उसके बावजूद भी खुद को लपेट कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और अपने बेटे की जानकारी ली। ठीक है? तो लोगों ने कहा कि तुम्हें मतलब गम में इतना इतना वो था, गम में जो है तुम्हें इतना ज़्यादा अ, होश था कि मतलब तुम वो करके आ गई, पर्दा करके आ गई हो, ऐसा भी क्या? तो उन्होंने क्या कहा कि मैंने अपना बेटा ज़रूर खोया है मैंने लेकिन हया नहीं खोई है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आजकल शर्म और हया और बेपर्दगी तो क्या है उल्टी ही चीजें हैं। ठीक, तो शर्म और हया को हमने किस चीज से वो कर दिया कि बस इंसान हंस के क्या करे, थोड़ा सा मुस्कुरा ले, उसको हमने क्या कह दिया है, शर्म कह दिया है। या फिर जो है कोई इंसान बुजदिल है और वो क्लास में कुछ नहीं पूछ पा रहा है तो उसके इसको शर्म आती है ना। या फिर कोई जो है काम ना कर पाए, शर्म और हया ईमान का एक हिस्सा है। और ईमान वाला कौन होता है जो मोमिन होता है। मोमिन के मायने क्या हुए, जो कि फर्मा बरदार होता है। और किस चीज का फर्मा बरदार होता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी बात सिखाई, जो भी हुक्म दिया, उसका क्या करने वाला, पैरवी करने वाला और उसको मानने वाला। तो लिहाजा पर्दा क्या है, फर्ज है और हमें चाहिए कि हम क्या करें, पर्दा करें। अल्हम्दुलिल्लाह। अब तबर्रुज के बारे में बात करेंगे। तबर्रुज क्या है, ये एक क्या है, अरेबिक वर्ड है कि जब कोई औरत मतलब पर्दे का उल्टा वर्ड जो होता है वो क्या होता है, उसको तबर्रुज कहा जाता है। ठीक, तो जब कोई औरत, पर्दे का मतलब हो गया ढांकना, और खुला हुआ या फिर जो है बेपर्दगी को क्या कहा जाता है, तबर्रुज कहा जाता है। तो अब हमने ये तो देख लिया कि पर्दा क्या है, पर्दा ईमान है, पर्दे से क्या होता है कि पर्दों से दिलों की पाकीज़गी होती है। उसके अलावा हमने क्या देखा कि पर्दा जो है क्या है, गैरत, हैं? गैरत जो है उसको छुपाने की चीज़ है कि गैरत का ही पार्ट है। जिसके जिसके अंदर गैरत होगी वो क्या करेगा, उसके वो पर्दा करेगा, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि हमने अभी रिसेंट हदीस में देखा। फिर उसके अलावा हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बहुत सारे जो है हुक्म पढ़े और जिनका आजकल हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल से उल्टा कर रहे हैं। ठीक है? तो पर्दे की अहमियत देख ली, लोगों के क्या मिसकंसेप्शन है इस चीज़ के बारे में वो देख लिया। अब पर्दे की उल्टी चीज़ क्या है कि अगर कोई इंसान बेपर्दगी करता है तो उसके बारे में जो है क्या कहा जाता है? तो बेपर्दगी अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी है। यानी कि जो इंसान क्या करता है, बेपर्दगी कर रहा है, तो सरासर क्या कर रहा है, नाफरमानी कर रहा है। नाफरमानी करने वाला कौन हुआ? जो कि सामने सारी चीज़ें हैं और मना कर दिया। हुँ, क्या कर दिया? इनकार कर दिया। इनकार करना कुफ़्र बोलते हैं ना, इनकार करने में, तो ऐसा ना हो कि मुसलमान घर में होकर भी हम क्या हो जाएँ, काफ़िरों की ज़िंदगी जिए। ठीक है? तो ये हदीस पढ़ेंगे, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से हर कोई जन्नत में जाएगा सिवाय उनके जिन्होंने इनकार किया। तो सहाबा ने पूछा कि कौन इनकार करेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी अताअत की वो जन्नत में दाखिल होगा और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने जन्नत में दाखिल होने से क्या किया, इनकार कर दिया। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत जिसने की उसने क्या किया,
उसने अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत में दाखिल हुआ। और जिसने उसने क्या किया, जिसने मना किया उसने दुनिया में ही जाने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तो अब देखिए ये वैसी चीज है, तो हम मान लीजिए कल को जो है खुदा ना खास्ता ऐसा होता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको जहन्नम की आग से बचाए, कि वहां जाएंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहे कि चलो जहन्नुम में, तो क्या होगा कि हमने तो सारे काम किए, हमने रोजा, ज़कात, नमाज, हज सब किया, हर फर्ज किया, लेकिन फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहेंगे? फरमाबरदार का मतलब बताइए, कि जो हर अहकामात माने, जो हर एक उसको माने। और फिर ये हदीस अगर पढ़ के सुनाई गई कि जिसने मेरी अताअत की, तो क्या किया आपने? आपने बस 5 पिलर्स को ले लिया इस्लाम के, और वो मस्ट है, वो ऐसी चीज़ें मस्ट हैं, उसके बिना जो है नहीं खड़ा, उसके ऊपर इस्लाम खड़ा है। लेकिन इस्लाम में बाकी चीज़ें भी तो हैं। तो क्या कहा कि जिसने मेरी अताअत की वो जन्नत में जाएगा, और जिसने नाफरमानी की उसने जन्नत से दुनिया में ही क्या कर दिया, इनकार कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया, ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आयतें भेजी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको बताई। और हम क्या कर रहे हैं, उस चीज़ का इनकार करते हैं, क्या बोलकर, तरह तरह की चीजें बोलकर कि ये पुरानी चीज है। और आजकल तो लड़कियां कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, या फिर जो है लड़के जो है कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। और अगर को एजुकेशन है तो उसमें जो है क्या है, ऐसी चीजें जो है आम है। तो इस चीज को हमने क्या कर दिया, आम कर दिया। बेसिकली हम किस चीज को आम कर रहे हैं, ये चीज आम करके हम ये चीज को आम करके क्या कर रहे हैं, हम कुफ्र को आम कर रहे हैं, कि जो आयतें हैं उनको नकारना हम आम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि जो चीजें हैं जो कि बताई गई कि ये नहीं करनी है, उनको करके कुफ्र को आम कर रहे हैं, हम नकार रहे हैं चीजों को। इसी तरीके से दूसरी चीज क्या है कि जहन्नुम में ठिकाना होगा अगर इंसान क्या करता है, तबर्रुज या फिर बेपर्दगी करता है। तो ये हदीस दो किस्म के लोगों के बारे में बताती है जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं देखा था। कहा, जैसा कि वो अपने जमाने के बाद जाहिर होंगे, और उनके मुकद्दर उनके गुनाहों की वजह से जहन्नुम होगा। अब क्या होंगे? अलामा ने उन दोनों किस्मों के जाहिर होने की कयामत की मामूली निशानियों में से एक निशानी करार दिया। वो दर्ज झेल है, क्या है कि मवेशियों के दुम की तरह कोड़े वाले मर्द। दूसरी क्या किस्म है, वो औरतें, मतलब ये वो है जो कि लोगों जालिम जो करते हैं ना, जो जुल्म करते हैं, जालिम मर्दों के बारे में आया है। और दूसरी कौन, वो औरतें जो कपड़े पहने फिर भी नंगी हैं, एक दिलकश चाल के साथ चल रही हैं। ठीक है, और आज क्या है, कैट वॉक को क्या किया जाता है, इतना ज्यादा हाइप किया जाता है, अरे उसकी वॉक देखिए, बहुत ही कॉन्फिडेंटली वो वॉक करती है। कॉन्फिडेंट जो है बेपर्दगी में नहीं है। आजकल जितना भी बोलो कैट वॉक, मुझे लगता है सभी जानते हैं। जो कि रैंप पर इंसान वॉक करता है तो क्या है, दिलकश चाल चल रही है, कि उसके चाल में कैसी हो, लचक हो। उनके सरों पर कोई ऐसी चीज, एक चीज है जो ऊंटों के कोहान की तरह नजर आती है। तो कैसी चीज, जो कि ऊंटों के कोहान की तरह नजर आती है, जो ऊंट का हम्प होता है, एक तरफ झुकी हुई है। तो ऐसी चीजें डालकर जो कि एक तरफ झुकी हुई हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि इंसान जो है क्या कर रहा है। दूसरी चीज एक और थी इसके अंदर, कि जो पर्दा है उसके अंदर जो है क्या जरूर होता है, कि अपना जो है चेस्ट कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लिहाजा क्या है, तबर्रुज करने का एक तो ये है कि पहली चीज, अगर इंसान तबर्रुज करेगा तो उसमें क्या है, तबर्रुज का पहला पहला नुकसान ये है कि वो इंसान क्या कर रहा है, अपने लिए जहन्नुम लिख रहा है। दूसरी चीज उसके अंदर क्या पता चली उस वाली आयत से हमें, दूसरी चीज ये पता चली कि वो नाफरमान बन रहा है, तो यानी कि वो मोमिनों में काउंट ही नहीं किया जाएगा। अब इस हदीस से हमें क्या पता चलता है कि वो औरतें जिनकी चाल कैसी है, लचक वाली है और वैसी है, वो क्या है, वो जहन्नुम वाली है। तो सीधा सीधा तबर्रुज करने वाले का ठिकाना क्या बताया गया, कि जहन्नुम है। ठीक है, तो लिहाजा जितने भी लोग कहते हैं, और कल को जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबके सामने खड़े होंगे और कोई अगर बोलेगा ना, पता है बहनों वहां क्या होगा, कि जब कोई इंसान, कोई आंखों वाला कहेगा कि अल्लाह मैं पढ़ नहीं पाया कुरान, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अंधों को खड़ा कर देंगे और कहेंगे कि देखो ये मेरा बंदा है, ये कुरान पढ़ा करता था, तुम्हारे पास क्या एक्सक्यूज है। जब कोई दोनों सही सलामत पैर वाला इंसान क्या कहेगा कि अल्लाह मैं नहीं पढ़ पाया नमाज क्योंकि मेरे पैरों में दर्द था, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसके पैर नहीं होंगे उनको सामने खड़ा कर देंगे कि देखो इसने क्या किया, इसने जो है पांचों टाइम की जो है क्या पढ़ी, नमाज पढ़ी, तो तुम्हारे पास क्या एक्सक्यूज है। इसी तरीके से जब हम
हम में से मैं नहीं चाहती कि हम में से कोई भी बहन जो है इस तरीके की क्या हो, इस तरीके का हमारे साथ कोई भी जो है मंज़र हो कि जब कोई बोले कि अल्लाह में पर्दा नहीं कर पाए क्योंकि ये चीज़ थी, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है ये हदीसें हमारे सामने रख दें। तो क्या मेरे नबी ने ना कहा था? हुँ, कि ये जहन्नुम में जाने वाली चीज़ है? क्या मेरी ये आयतें नहीं उतरी थी कि इन पर हुक्म इनका क्या ये हुक्म नहीं था कि तुम्हें जो है हर हुक्म मानना था? हुँ, तो हमने क्या आज हमने पर्दे की अहमियत पता करी, फिर हमने ये देखा कि बेपर्दगी का क्या अंजाम होता है। हमने क्या देखा कि बेपर्दगी का क्या अंजाम होता है। इसी तरीके से मुस्नद अहमद की एक और हदीस आती है कि उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैं ईमान कबूल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, तो आपने मुझसे क्या है बैत ली। बैत का मतलब होता है वादा लिया, कि जो वो होती है ना ओथ ली जाती है। तो ज़िंदगी में तो क्या वादे थे उसमें? 6 चीज़ें थी कि मैं शिर्क नहीं करूँगी, दूसरी चीज़ थी कि मैं ज़िंदगी में कभी चोरी नहीं करूँगी, तीसरी चीज़ थी मैं ज़िंदगी में कभी ज़िना नहीं करूँगी और औलाद को ख़त्म नहीं करूँगी। फिर कहा कि दूसरे की औलाद को अपना शौहर के नाम पर नहीं करूँगी, यानी कि ये ज़िना में आ गया, ठीक? और 6 चीज़ छठी चीज़ क्या थी इसके अंदर कि जहालत के दौर की तरह तबर्रुज नहीं करूँगी। 6 चीज़ क्या थी कि जहालत के दौर की तरह तबर्रुज नहीं करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या हुआ कि हमें ये चीज़ पता चली कि जहालत के दौर में बेपर्दगी हुआ करती थी और आज हमने खुद को पढ़ा-लिखा बनाने के चक्कर में जहालत का दौर वापस लाकर क्या किया है, बेपर्दगी शुरू कर दी है। ठीक है? तो फिर उसके बाद क्या किया, ईमान कबूल किया। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसी तरीके से एक और हदीस है जो मैं पढ़ देती हूँ, मैंने इसमें डाली नहीं है। अच्छा, ये यही वाली हदीस थी कि 2 गुनाह ऐसे हैं जो मेरे दौर में नहीं आए लेकिन आएँगे। ठीक है? एक तो वो मर्द जो कि ज़ालिम है और दूसरा वो जो कि कैसे करके चलती है। ठीक? जो औरत जो आहिस्ता-आहिस्ता धीमी चाल चले, लंबे कपड़े पहने और जो है ये चीज़ जो है क्या है, सिर्फ़ उसके शौहर के लिए ये चीज़ जायज़ है। ठीक है? आहिस्ता-आहिस्ता चलना या फिर जो है चाल जैसी भी है वो चलना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है। अब हिजाब के कुछ शराइत होते हैं पहनने का, हिजाब या जिल्बाब या फिर अबाया जितना भी हमने बोल दिया। लिहाज़ा तो पहली चीज़ तो हमने क्या देख ली कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ पर्दे को सिर्फ़ एक कपड़े से वो ना करें, है ना? वो स्टार्टिंग है कि हाँ, इंसान जो है खुद को ढाँक रहा है और खुद को क्या कर रहा है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम बिल्कुल भी क्या ना करें, उस चीज़ को महदूद ना कर दें कि बस एक हमें कपड़ा पहनना है और फिर हम गैर महरम से भी बात करते फिरें। फिर हम जो है उनसे किस आवाज़ में बात करते फिरें, है ना? हमें ये सब नहीं करना है और हम जो है पूरे मार्केट का जो है चक्कर लगाते फिरें, ठीक? तो नो डाउट अगर जो है उसमें जाना है, कुछ काम है और घर में जो है मर्द नहीं है तो बेशक जाएँ। लेकिन जो है उस पर सिर्फ़ कपड़ा पहनना जो है क्या नहीं है, पर्दा नहीं है। तो लिहाज़ा हिजाब के क्या कुछ शराइत हैं, जो कि क्या है कि हिजाब कैसा होना चाहिए, पूरे जिस्म को ढाँपता हो। पूरे जिस्म को ढाँपने से मतलब ये है कि सिवाय सिर्फ़ ऐसी चीज़ें जो कि खुली रहनी चाहिए, जिसमें हाथ और जो है टखनों तक पैर होते हैं, ठीक? और जहाँ तक जो है एक क्वेश्चन ये आता है तो क्या मतलब चेहरे का भी पर्दा है? तो हाँ, क्योंकि चेहरा जो है मरकज़ होता है किस चीज़ का, अट्रैक्शन का। क्योंकि अगर हम देखा जाए कि शादी के टाइम पर क्या देखते हैं, फ़ोटोज़ वग़ैरह ये सब चीज़ें देखते हैं, ठीक? तो क्या है शादी की फ़ोटो अगर देखते हैं तो हम सबसे पहले चेहरा देखते हैं और सबसे पहले चेहरा ही ऐसी चीज़ है जो कि क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। बेसिकली पर्दे का मतलब क्या हो गया, बैरियर। बैरियर का मतलब क्या हो गया कि हमने जो है एक बाउंड्री बना ली। किस चीज़ की बाउंड्री बना ली? खुद को महफ़ूज़ रखने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल बाहर जो है अगर दुश्मन खड़ा है तो मैंने एक किला बना लिया। तो मैं जो है अब अपना मुँह नहीं दिखाऊँगी झाँक-झाँक के, नहीं तो वो मेरा सर उड़ा देगा। है ना? अगर कोई मान लीजिए वहाँ पर कोई किले के बाहर या फिर जो है किसी दीवार के बाहर, अगर जो मैंने दीवार बनाई है उसके बाहर एक दुश्मन खड़ा है और वो बंदूक ताने खड़ा है और मुझे पता है कि मेरी रूह को, मेरे जिस्म को और जो है मेरे ईमान को इससे खतरा हो सकता है, तो मैं झाँक कर नहीं देखूँगी, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। फिर क्या है, दिखावे की कोई चीज़ ना हो। दिखावा यानी कि ज़ीनत। तो आजकल जो बेल, बूटी और ये सब कुछ आती हैं, तो वो सब चीज़ें भी जो है अबाया में नहीं होना चाहिए। आप अंदर पहने लेकिन उसको भी छुपाने के लिए, अपनी ज़ीनत छुपाने के लिए क्या करें, ऊपर से एक और पर्दा डाल लें। फिर क्या है, बारीक और पतला नहीं होना चाहिए। बारीक और पतला नहीं होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक।
फिर उसके इसके लिए जो है एक वो भी आती है, हदीस भी है कि आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास कुछ औरतें आईं तो बारीक लिबास उन्होंने पहना हुआ था। तो आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि क्या तुम मोमिन हो? तो मोमिन हो तो पूछा तो अगर मोमिन हो तो मोमिनों का लिबास ये नहीं, और अगर नहीं हो तो 4 दिन जो है क्या है जो है ज़िंदगी में रहो, फिर आखिरत में उस जो है क्या होगी तुम्हारी पकड़ होगी। तो बारीक और पतला नहीं होना चाहिए, जिसके जो है अंदर की ज़ीनत यानी कि अंदर जो आपने अच्छे कपड़े पहने हैं वो दिखे। तंग ना हो, टाइट नहीं होना चाहिए। उसके अलावा 5th क्या है, खुशबूदार ना हो। औरत के लिए जो है खुशबू नहीं है अलाउ। अबाया में लगाएँगी तो अबाया कैसी है, बाहर घर से बाहर निकल के पहनने वाली चीज़ है। तो बाहर जाएँगी तो खुशबू होगी और फिर उस औरत को ज़ानिया कहा गया। और फिर आदमियों की मुशाहिबत ना हो, यानी कि जैसे मेंस जो है वो रिजेंबल करते हैं ना, तो आदमियों की तरीके से नहीं होना चाहिए। क्या एक ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि आदमी जो है क्या करते हैं, आदमी जो है पहनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके अलावा काफ़िरों की मुशाहिबत नहीं होना चाहिए। काफ़िरों से यहाँ पर मतलब है कि जो पैंट या काफ़िर, एक तो वही चीज़ है कि जाहिलियत के दौर में बेपर्दगी होती थी, तो ऐसा ना हो कि पर्दा है और फिर भी बेपर्दगी है ना? कि आधा सर खुला है और जो है कैसा है। तो आपने देखा होगा कि कई औरतें ऐसी होती हैं कि पूरा बुर्का उन्होंने पहना हुआ होता है या पूरा ढका हुआ होता है खुद को, लेकिन फिर भी क्या होता है, फिर भी क्या करती हैं बहनें, फिर भी उसके अलावा चोटी जो है बाहर लटक रही होती है। तो ये चीज़ जो है ये नहीं होना चाहिए कि भई जो चीज़ ढकने की है उसको ढका ही जाए। फिर उसके अलावा हिजाब शोहरत के लिए ना हो। शोहरत यानी कि फ़ेम के लिए ना हो कि कोई आके कह दे कि वाह! कितना खूबसूरत वो जो है पहना है। और किसी मर्द के दिमाग में ये ना आ जाए कि इसका इतना खूबसूरत है तो मैं अपनी बीवी को भी यही दूँगा, है ना? तो कभी भी ऐसा ना हो, क्योंकि वो जो है आपको छुपाने के लिए है। मैंने बताया ना कि कोई भी चीज़ दिखानी नहीं है। तो जैसे इंसान अपना पैसा छुपाता है, जैसे अपनी जो है प्रीशियस चीज़ें छुपाता है, इसी तरीके से बाकी चीज़ें क्या हो, छुपाई जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से पर्दे के 3 स्टेप्स हैं। पर्दे के 3 स्टेप्स में क्या है कि घर में आने-जाने के मामलात दुरुस्त होने चाहिए। फिर नज़रों की हिफ़ाज़त होनी चाहिए, ये पर्दा है ना? तो देखो नज़रों का भी पर्दा आ गया इसमें कि नज़रों की हिफ़ाज़त, कोई ऐसी चीज़ ना देखें, किसी को ऐसे ना देखें। फिर उसके अलावा बहुत सी चीज़ें इसके अंदर आ गई, ठीक है? पर्दा उनके सामने ज़रूरी है जो क्या हैं, गैर महरम हैं। तो अब ये पर्दे के जो 3 स्टेप्स हैं, हमें पता कहाँ से चले? ठीक है? उन आयतों के बारे में पढ़ लेते हैं हम कि हमें इन 3 स्टेप्स के बारे में पता कैसे चला? तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर सूरह नूर की आयत नंबर 27 से 29 के बारे में हमें पता चला। चलो, तो आयत नंबर 27 है, ए ईमान वालों, अपने घरों के सिवा और घरों में ना जाओ जब तक इजाजत ना ले लो, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, और उनके साकिनों पर सलाम ना करो। क्या ना करो, सलाम ना करो, कर लो। ये तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम ध्यान करो। तो पहले तो क्या होना चाहिए कि घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसका आना जायज़ है, किसका आना मना है, कौन इजाज़त लेकर आएगा और कौन जो है बिना इजाज़त के जो है दाखिल हो सकता है। तो पहली शर्त क्या हो गई पर्दे की, यही हो गई। घर से ही शुरू होता है ना कि घर में आने-जाने के मामलात दुरुस्त होने चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है। ठीक? फिर उसके अलावा आयत नंबर 28 में कहा, फिर अगर उनमें किसी को ना पाओ, जब भी बेमालिकों की इजाज़त के उनमें ना जाओ। यानी कि अगर किसी के घर में जा रहे हैं तो आप मालिक नहीं है तो उनकी इजाज़त के बिना नहीं जा सकते। और अगर तुमसे कहा जाए वापस जाओ तो वापस हो जाओ। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती जो है आप अंदर जाएँ। ये तुम्हारे लिए बहुत सुथरा है, अल्लाह तुम्हारे कामों को जानता है बेशक। फिर कहा, उसमें तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि उनके घरों में जाओ जो खास किसी की सकूनत के नहीं, और उनके बरतने का तुम्हें इख्तियार रहे, और अल्लाह जानता है जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। यानी कि जो तुम जाहिर करते हो, जो दिखाते हो, जो छुपाते हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज को जो है जानते हैं। सूरह नूर की ये वाली जो आयत है कि ये पर्दा उनके सामने हो जरूरी है जो कि गैर महरम हो। तो लिहाजा क्या है कि घर में रहना है और घर में पुरसुकून होकर रहना है। चलिए, अब पर्दा किससे करना है ये चीज जो है हम देख लेते हैं। तो पर्दा किससे करना है ये देखिए कि सूरह नूर की आयत नंबर 31 में कहा गया, और मुसलमान औरतों को हुक्म दो अपनी निगाहें कुछ नीची रखें और अपनी पारसाई की हिफाजत करें और अपना बनाव ना दिखाएं। बनाव यानी कि जो इंसान सजता और संवरता है, बनता
संवरता है ना, उसके बारे में बात हो रही है। मगर जितना खुद ही ज़ाहिर है और वो दुपट्टे अपने गिरबानों पर डाले रहें। दुपट्टे अपने गिरेबानों पर क्या रहें, डाले रहें और अपना श्रृंगार जाहिर ना करें, यानी कि दिखाए ना जो भी आपने किया है। तो अभी कोई बहन जो है क्या कर रही थी, लिपस्टिक के बारे में पूछ रही थी। तो लिपस्टिक भी ऐसी चीज है जो कि इंसान को क्या करता है, ब्यूटीफाई करता है बेसिकली। ठीक है, तो क्या है कि उसको जाहिर ही नहीं करना। कवर कर लें उस चीज को, जाहिर ना करें, मगर अपने शौहरों पर या अपने बाप, या अब देखिए किस किस के सामने कहा गया, या तो शौहर या अपने बाप या शौहरों के बाप यानी कि ससुर, या अपने बेटे या शौहरों के बेटे, है ना, अपने बेटे हो गए, या अपने भाई या अपने भतीजे या अपने भांजे या अपने दीन की औरतें। हाँ, दीन की औरतें कौन सी हो गई, जो औरतें मतलब आती जाती रहती हैं, जैसे घर में हर औरत के सामने भी नहीं है ना, औरत औरत का भी पर्दा है, उसके बारे में भी बात करेंगे इंशाल्लाह। कि ये अपने दीन की औरतें या अपने कनीजें जो अपने हाथ के मिल्क हो, यानी कि जो घर में अगर मान लीजिए कनीजें हैं, नौकर चाकर रहते हैं, वो आए वो, या नौकर बशर्त ये कि शहूवत वाले मर्द ना हो, मतलब ऐसे मर्द ना हो जिनके जो क्या है अट्रैक्शन हो सकता है। ठीक, या वो बच्चे जिन्हें औरतों की शर्म की चीजों की खबर नहीं है। मतलब इतने छोटे बच्चे, मर्दों की बात हो रही है कि इतने लड़के जो हो, इतने छोटे बच्चे हों कि उनको ना पता हो कि भाई ये सब चीजें क्या हो, तो उनसे जो है क्या नहीं है, उनसे पर्दा नहीं है। और जमीन पर पाँव जोर से ना रखें कि जाना जाए कि उनका छिपा हुआ क्या है, सिंगार है। सिंगार क्या है, जो भी चीज इंसान करता है। और अल्लाह की तरफ तौबा करो ए मुसलमानों, सब के सब उस उम्मीद पर कि तुम फलाह पाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक बार पढ़ देते हैं हम के पर्दे के 3 स्टेप। हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़े थे कि अपने घरों में रहें और कैसे सुकून से रहें अपने घरों। इसका वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। सूर्य आप जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कंटिन्यू कर लो। मेरे नेटवर्क्स फुल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नेट भी है, पता नहीं क्यों ठीक है, ऐसा हो रहा तो आप है। ब्रेक हो कंटिन्यू रही करो। है अभी भी। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, आप एक बार जी कंटिन्यू जी कर लो, जो आ रही है उसमें इंशाल्लाह मैं कर लेंगे। बोलती हूँ, सूरह नूर आयत नंबर 31। और मुसलमान औरतों को हुक्म दो अपनी निगाह, और मुसलमान औरतों को हुक्म दो अपनी निगाहें कुछ नीची रखें और अपनी पारसाई की हिफाजत करें। और मगर जितना खुद दुपट्टे अपनी गिरेबानों पर डाले। अदीबा, आप स्क्रीन शेयरिंग रोक दो, मैं कर देती हूँ। ठीक है, एक सेकंड। और मुसलमान औरतों को हुक्म दो अपनी निगाहें कुछ नीची रखें और अपनी पारसाई की हिफाजत करें और अपना बनाव ना दिखाएं, यानी कि जो बन संवरते हैं, मगर जितने खुद ही जाहिर हैं। और और वो दुपट्टे अपने गिरेबानों पर डाले रहें और अपना सिंगार जाहिर ना करें, मगर अपने शौहरों पर या अपने बाप, ये सब वो है जिन, और उसके बाद का शौहर के बाप, शौहर के बाप यानी कि अपने ससुर, और अपने भतीजों, भतीजों यानी कि जो भाई के बेटे होते हैं, और अपने भांजों यानी कि जो भांजे होते हैं, जो अपनी बहनों के बेटे होते हैं, में जो कि औरतें हों। औरतें कौन हो गई, कि वो औरतें, हर औरत नहीं, जो कि औरतें जो कि घर में हैं, और ऐसे गुलाम जो कि जिनका आना जाना हो घर में, फिर छोटे बच्चे जिनको कि ये अंदाजा ना हो कि शर्मगाह क्या होती है, यानी कि
जो वैसे पार्ट्स होते हैं इंसान के वो क्या होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन सब लोगों से क्या करना है, पर्दा अगर ना भी करें तो इंसान को क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रियायत दी है, और ये वो लोग हैं जिनसे जो है आप क्या नहीं करते, पर्दा ना करें। तो आज थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हुई, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। तो आज का जितना भी था कि पर्दे की क्या अहमियत है, तबर्रुज यानी कि बेपर्दगी के क्या नुकसानात हैं, फिर हमने ये देखा कि पर्दे की क्या शराइत है, पर्दे के 3 जो है क्या होते हैं, स्टेप होते हैं कि घर में पर्दा हो, हर गैर महरम से पर्दा किया जाए, और आवाज का भी पर्दा हमने देखा उसके अंदर। फिर हमने देखा कि पर्दा किससे जो है नहीं करना है। अल्हम्दुलिल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर।